Hello and welcome back, student. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Bachelor's in Computer Science, second year, semester 4, data structures, and this is an algorithm to reverse the linked list. In reversing the linked list, the last node will become your first node and the second node will become your second last node will become second, and so on. During entire operation, only addresses are shifted instead of physical movement of information. So only the nodes are shifted, the informations remain in the same node. Now the name of the algorithm is reverse list, and the pointer required or the variable required is only the start pointer. The start always contains the address of your first node. So here every node, not the start pointer, but every node is basically of two parts, that is info and link. The info part always contains the data and the link part always contains the address of your next node. Now we will require a local pointer variable to keep track of all the nodes that we will be working upon at any current time. Now the first step, that whatever is in your start, you are going to shift or copy it to your local pointer variable PTR. So whatever is in start is shifted to PTR, and now there is one more variable, say RPTR, that is reverse pointer, which will be initially null because reverse pointer is not initially nowhere pointing, it's not pointing to any node. We are going to create a reverse linked list and later on this will be updated. Now there are few steps that has to be repeated, and till what time you are going to repeat? Till the time you reach the end of your linked list. How do you recognize the end of a linked list? Whenever your PTR becomes null, that means it's not pointing to any other node, so you say this is the end of linked list, and so you are going to repeat while PTR is not equal to null. Now temp equals to RPTR. So whatever is in your RPTR, you are going to shift it to temp. Now initially, because your RPTR is null, temp is also null. Now RPTR is updated to PTR. So whatever is in your PTR is now copied to RPTR. And every time your PTR goes to next node, that is PTR is equals to link, एंड RPTR के लिंक में आप हमेशा टेम्प को डालते रहेंगे बिकॉज ये रिवर्स लिंक लिस्ट है. अब आखिरी स्टेप होगा जब आपका लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो यू विल से कि अब मेरा स्टार्ट RPTR है रिटर्न. दिस इज गोइंग टू गिव यू अ रिवर्स लिंक लिस्ट. अब इसे डायग्रामेटिकली बुक में तो नहीं दिया है, बट आई विल ट्राई एंड शो यू. ठीक है. सो मान लेते हैं ये हमारी लिंक लिस्ट है, बहुत छोटी सी बनाई हमने. 90 ये है 90th नोड. इफ़ दिस इज 9, स्टार्ट की वैल्यू अगर 90 है ना, तो मतलब वो इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं, इस नोड का एड्रेस 90 है. इसके लिंक पार्ट में 100 लिखा है, यानी इस नोड का एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है 101. जो लिंक में होता है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है. ठीक है. अब सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो PTR है एक लोकल वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, उसमें स्टार्ट डाल दीजिए. तो आप मुझे बताइए कि अब इस PTR की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू 90 है, PTR की भी वैल्यू 90 हो जाएगी. राइट, एम आई करेक्ट? नेक्स्ट एक वेरिएबल RPTR रिवर्स पॉइंटर के लिए उसको आपने इनिशियली नल रखा है. ऑब्वियस है क्योंकि अभी तक आपकी रिवर्स लिंक लिस्ट बनी नहीं, तो उसका PTR भी नल होगा. नाउ जब तक PTR 90 से शुरू हो रहा है, जब तक नल नहीं होता, आपको रिपीट करना है स्टेप्स को. कैसे स्टेप्स? पहला स्टेप, जो RPTR में है उसे टेम्प में डाल दीजिए. RPTR में क्या है? नल. तो टेम्प में भी क्या आ गया? नल. गुड. नेक्स्ट ये हो रहा है कि अब आपके PTR में जो है वो RPTR में डाल दीजिए. अब आपके PTR में जो कुछ भी है उसको आप RPTR में डाल दीजिए. आपके PTR में क्या है? 90. तो RPTR में क्या आ जाएगा? 90. नेक्स्ट, अब आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा, एक ही नोट पे तो नहीं रह सकते. अब नेक्स्ट नोट पे आ जाओ, तो PTR विल बी PTR का लिंक, यानी अब 100th नोट पे वर्क करना. और हर बार RPTR के लिंक में टेम्प डाल दीजिए. ये 4 स्टेप्स मेन है इस एल्गो.
की, ठीक है। अब इसको वर्क करके देखते हैं इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के लिए। तो फर्स्ट पूरा करने के बाद मैं सिर्फ रिवर्स लिंक लिस्ट यहाँ पे बनाती हूँ। तो RPTR लास्ट स्टेप देख लीजिए, लास्ट स्टेप है स्टार्ट इक्वल्स टू RPTR, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट क्या करेगा, RPTR को पॉइंट करेगा। आफ्टर द कंप्यूटेशन ऑफ दिस होल चीज RPTR में क्या रखा है 90। अब ये 90th नोड है और RPTR के लिंक में क्या रहेगा टेम्प। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्प में नल है यानी एक ही नोड रिवर्स हुआ। अभी बोलोगे मैम ये तो 90 है, यहाँ भी 90 है, ये रिवर्स कैसे हुआ, ये रिवर्स अभी होगा। अब नेक्स्ट टाइम आपके RPTR में जो है वो टेम्प में चला गया, यानी ये पूरा की पूरा नोड अब टेम्प में चला जाएगा, ठीक है। और RPTR खाली हो जाएगा और RPTR में PTR आएगा, अगला PTR, क्योंकि पिछली बार PTR नेक्स्ट पे चला जा चुका था। यानी अब आपका RPTR 100 होगा ना कि 90। और उसके लिंक में RPTR के लिंक में टेम्प आएगा। टेम्प कौन है भाई, अब हमारा पिछला 90th नोड अब टेम्प बन चुका है, तो यहाँ 90 आएगा। और इसके बाद वाली स्टेप और एक करेंगे ना, तो यहाँ पे 101 फिर 100 और फिर 90, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स करने के बाद इस तरीके से रिवर्स लिंक लिस्ट मिलती है। सो देन योर स्टार्ट इज गोइंग टू पॉइंट टू RPTR एंड दिस इज एन एल्गोरिथम फॉर रिवर्स ऑफ अ लिंक लिस्ट। थैंक यू।